آپ کو اسی راہ سے گزرنا ہے، آپ یہ بتائیے آپ کیسے گزرو گے اس راستے سے؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنے کپڑے شپڑے سمیٹ کر، جوتے وغیرہ احتیاط سے پہن کر، اور بڑے سنبھل سنبھل کر کے آپ اس راستے کو عبور کریں گے، پار کریں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کانٹوں سے ہمارا دامن الجھ جائے، کوئی کپڑا الجھ جائے، اور یا ہمیں کانٹے نہ چبھ جائیں۔ یہی تو جس طرح آپ بچ بچا کے اس راستے سے چلیں گے، بچتے ہوئے، کانٹوں سے بچتے ہوئے، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ اللہ کے اس دنیا کے اندر آپ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ یہ دنیا شہوات کے کانٹوں سے، خواہشات کی خارزار جھاڑیوں سے، یہ دنیا کا راستہ، یہ جنت کا راستہ جو ہے یہ بھرا ہوا ہے۔ اس لیے آپ ان راہوں پر اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سنبھل سنبھل کر کے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، اور رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے کہ کانٹوں سے بچتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہی تقویٰ ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے خوبصورت مثال ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو سمجھائی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو یہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیسے تقویٰ، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو اللہ کا احساس دلاتا ہے۔ ہم جو بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمارے حلق سوکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں ایک گلاس لسی کا مل جائے، شربت کا مل جائے، رس کا مل جائے، گنے کا جوس مل جائے، ہمیں کسی طرح سے نارنگی کا جوس مل جائے، کسی چیز کا جوس، ایک گلاس سادہ پانی بھی مل جائے، ہم پی لیں۔ بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ میں تقوی کی ایک اور آپ کو سمجھ بتاتا ہوں۔ کون سی وہ چیز ہے جس نے آپ کو پانی کے اس گلاس اٹھا کر اور اپنے ہونٹوں سے لگانے سے وہ روک رہی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے؟ یہ رمضان یہ احساس دلاتا ہے۔ اس لیے ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا یہ احساس ہے یہ کہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلق سے پیاس کی گرمی اور پیاس کی شدت سے آپ کے حلقوم سوکھے ہوئے ہیں۔ پانی موجود ہے، فریج میں موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کو طاقت ہے، قوت ہے، آپ نے بھی گلاس اٹھایا، گلاس اٹھا کر کے بھرا ہوا گلاس پانی کا آپ نے چاہا کہ پانی منہ میں ڈالیں، ڈال بھی لیا آپ نے۔ دل کہہ رہا ہے اندر یہاں سے نیچے کر لو کر لو، لیکن آپ کا ایمان نیچے سے آواز دیتا ہے کہ اے وہ شخص جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود وہ رب وہاں سے اس بند کمرے میں نگرانی کر رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تیری ایک ایک حرکتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے، وہ اللہ وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ فوری طور پر یہ احساس آتے ہی پانی کا وہ گھونٹ اپنے منہ سے نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ بھی جو تراوٹ کی وجہ سے جو تھوک ہے اسے بھی آپ تھوک دینا گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنے اس کانٹے جیسے حلق کو تر کرنے کے لیے، پیاس کو مٹانے کے لیے آپ پانی کا گھونٹ اندر نہیں لیتے ہیں۔ کون سی چیز، کس چیز نے آپ کو روکا؟ کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیوں آپ نے وہ پھینکا؟ یہی ہے تقویٰ، یہی ہے تقویٰ، یہی یہ رمضان آپ کے دل کے اندر رمضان کے مہینے میں یہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ روزہ پیدا کرتا ہے تاکہ 24 گھنٹے اور پھر 11 مہینے آپ اسی احساس کے ساتھ اپنی زندگی کے اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہیں، اس جنت کے راستے کو طے کرتے رہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ ہے، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، آپ ان راہوں پہ چلتے رہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ میرا خیال ہے یہ ہے رمضان، یہ ہے روزے کا فائدہ۔ ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے اسلام نے روزے کو فرض کیا تاکہ تمہارے اللہ کا احساس ہو جائے۔ 11 ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے جس میں ہم نے ایڈمیشن لینا ہے بہت جلد، جس میں بہت جلد ہمیں پہنچنا ہے، اپنا نام نوٹ کرانا ہے۔ یہ ہے روزے کا فائدہ کہ اپنے مالک و مولا کی اطاعت و بندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کم فائدہ نہیں ہے۔ آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور سنو، اور سب سے بڑا تقویٰ، یہ لمبی لمبی داڑھیاں، حجاب لگا لینا، آنکھوں کو بند کر لیں، یہ سب سے بڑا تقویٰ نہیں ہے۔ یاد رکھو، سب سے بڑا تقویٰ یہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ تسبیح ہاتھوں میں لٹکا کر کے گھومیں، یہ سب سے بڑا تقویٰ نہیں ہے۔ سب سے بڑا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ پیشانیاں رگڑ رگڑ کے کالی کر لیں، یہ داغ یہاں بنا لیں، امامے باندھ لیں، ٹوپیاں لگا لیں،
पांच जा करके लोगों के दरमियान मुंडी उंडी झुका के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये लोगों ने खशो खाशाक के ऊपर मेहनत करना शुरू की। पर्दा पर्दा हिंदुस्तान के अंदर हिजाब के मसले पर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कुफ्र हो रहा है, और सबसे बड़ा कुफ्र मुसलमान कर रहा है, उसकी तरफ किसी के सर पे जूं तक, कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अल्लाह की तौहीद की चादर को तार तार किया जा रहा है। इसका एहसास न किसी मिनिस्टर को है, न किसी वजीर को है, न किसी मुसलमान को, न किसी आलिम को, न किसी मौलवी को। इसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा। गली गली कूचे कूचे में झंडे बंडे लगाकर, चादरें मट्टियों के ऊपर डालकर मुर्दों की परस्तिश होती है, झंडों की परस्तिश होती है, ईंट और पत्थर की पूजा होती है। मुसलमान चिल्ला बना बना करके, ये गौस का चिल्ला, ये ख्वाजा का चिल्ला, ये हजवेरी का चिल्ला, ये फलाने के चिल्ला, ये रिफाई का चिल्ला, गैरुल्लाह के नाम के ज़बीहे ज़बा करते हैं, डेगें ठनकाते हैं, उर्स करते हैं, मेले करते हैं। हर जुमेरात को जनाब अली अल्लाह के तौहीद की चादर को नोच नोच करके ये मुसलमान तार तार करता है। इसके लिए किसी का ज़मीर, किसी के कान पर जूं तक इसके खिलाफ नहीं रेंगती, कोई आवाज नहीं उठाता है। चले हो हिजाब के खिलाफ लड़ने के लिए, हाँ? तुम लड़ोगे, तुम करोगे। याद रखो, रब की तौहीद का मजाक उड़ाकर, रब की तौहीद की चादर को खींच कर, तार तार करके, अल्लाह की तौहीद को नंगा करके तुम और हम अपनी बहन बेटियों को पर्दा नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें मदद नहीं पहुंचा सकती। तुम क्या समझते हो? अरे ये कुफार, ये दुश्मनान इस्लाम, ये खशो खाशाक है, इनकी क्या अहमियत और इनकी क्या वक़्त। अल्लाह ने फरमाया बख्शोनी, मुझसे डरो, उनसे मत डरो, किसी से मत डरो, अल्लाह से डरो। यह है तकवा, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। और सबसे बड़ा तकवा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई पीर हो, कोई शहीद हो, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं। यह सबसे बड़ा तकवा है, यह सबसे बड़ा तकवा है। यह है रोजा वो पैदा करना चाहता मुसलमान। रोजे की मानवियत को हमने समझाई। हमने सोचा बस भूखे प्यासे रहो, सुबह से लेके शाम तक डंडियां मारो, हराम खाओ, शिर्क बिल्लाह करो, दरगाहों को सजाओ, मज़ारों के ऊपर सजदे करो, मिठाइयां, नारंगियां, जलेबियां, बताशे, बुंदियां जाओ चढ़ाओ, मुस्टंडों को नजराने दो, उनके हाथ पैर धुल धुल के पियो, कव्वालियां गाओ, हारमोनियम गाओ, और जनाब अली नाचो, भंगड़े डालो, हैं? इसको तुमने इस्लाम समझा हुआ है। अल्लाह की तौहीद को रुसवा करके तुम दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते। याद रखो, कभी नहीं, कोई कायनात की कोई चीज तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, और उन लोगों के लिए जो शिर्क नहीं करते, मोमिनीन, सादिकीन है, सच्चे। काश तुम इतने वावेले इन दरगाहों मज़ारों के लिए खड़े करते, आज दुनिया के सामने बताते कि ये इस्लाम नहीं है, आज तुम दुनिया को समझाते ये दीन नहीं है। लेकिन कैसे समझाओगे? तुम्हारी रोजियां चलती हैं, तुम्हारी रोटियां इन मज़ारों दरगाहों से चलती हैं। तुमने इसको दीन समझा हुआ है, इस्लाम बावर करवाया हुआ है। गैर मुस्लिमों को भी, मुसलमानों को ऊद अगरबत्तियां ले लेकर के, हर जुमेरात को सिपारे ले लेकर, बच्चों को टोपियां पहनाकर, तुमने यही इस्लाम समझा हुआ है। असल इस्लाम कहाँ है? जो असल इस्लाम की दावत देते हैं उनके कत्ल के फतवे सादिर करते हो मुफ्तियों, उनके खिलाफ पर्चियां कटवाते हो, अदालतों और कोर्टों और कचहरियों में वावेले बचाते हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती। इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हरूफ। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, अरे कब्रों की तिजारत हो रही है, बुजुर्गों की हड्डियों को बेच बेच कर ये कलमा पढ़ने वाला मुशरिक खा रहा है और वली बना रहा, अपने आप को वली हैं, ये वली हैं, ये फलां। और इज्जत का मुतलाश ये कहते हमें उन्होंने मारा, हमें फलाने ने मारा, हमें गुजरात में ये हुआ, हमें हाशिमपुरे में ये हुआ, हमें फलाने में हुआ, चिल्लाते रहो। गेहूं के साथ घुंडू पिसते हैं। सुधरो मुसलमानों, सुधरो। ये रमजान का महीना तुम्हें अल्लाह की वहदानियत का हर एतबार से एहसास देने वाला है। किसी पीर फकीर का रोजा नहीं है। जिस रब को तुम डरते हो,
जिस रब से तुम डरते हो, अपने बंद कमरे में एक गिलास पानी भी पीना गवारा नहीं करते, एक घूंट मुंह में लेकर के तुम्हारा ईमान तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम अंदर करो, फौरन बाहर कर देते हो, कोई रोकने वाला नहीं। यही ईमान तुम्हें सांप सूंघ जाता है उस वक्त, ये एहसास मर जाता है जब औलाद नहीं होती, जाके दरगाहों की चौखटों को चूमते हो। किसने कहा ये? किस नबी ने कहा? किस रसूल ने कहा? किस सहाबी ने किया? किसने कहा? क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्यों करते हो? अल्लाह से तौबा करो। कायनात के रब की कसम है, एक नहीं हजारों दलीलें देने वाले इसके मुताबिक। दरगाह परस्ती, कब्र परस्ती, खानका परस्ती, चादर परस्ती, मुर्दा परस्ती, हजारों दलीलें, ये सब हमारे जूते की नोक पर, सब झूठ है, सब झूठ है, सब शयातीन हैं। इन्न शयातीन लयूहून बाज़ुहुम इला बाज़ ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल। रब ने फरमाया बड़े अच्छी बातें कर शैतान एक दूसरे शैतानों को वही करते हैं, उनके दिलों में डालते हैं, ये दलील दे, ये दलील। कोई दलील नहीं है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी इसके ऊपर। इन हिया अस्माउन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये गौस हैं, ये ख्वाजा हैं, ये फलाने हैं, ये मुश्किल कुशा हैं, ये तोर, ये फलां, इन हिया अस्माउन, ये नाम है तुमने रखे हैं, अल्लाह ने इनके ऊपर कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है। ये है तकवा। ये तकवा अल्लाह पैदा करना चाहता है। लाल्लकी, रोजे से तुम कहते हो रोजा बस यही है, भूखा रह लेना, पानी ना पीना, खाना ना खाना, बस यही नहीं है। हर चीज का रोजा, सबसे बड़ा ईमान ये है वो जो अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलों में पैदा करना चाहता है। अजीजान गिरामी, इस रोजे की वजह से ये बहुत ये सबसे बड़ा तकवा है। झूठ बोलना, चोरी करना, चमारी करना, गाली बकना, कत्ल, खून, गारतगरी, ये वो अला वला टका, ये उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना। आज जितने भी 80% शिर्क करने वाले, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मिस्र जमीन पर हैं, खास तौर से हमारे बर्रे सगीर के अंदर, और उन्हीं के हाथ पैर चूमे जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहे हो, उनको मुत्तकी समझा जा रहा है, परहेजगार समझा जा रहा है। कौन भाई? ठीक है, आप बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, तो जब अक्सरियत इनकी होती है, आप अक्सरियत में हो ना, बहुत ज्यादा सवाद आजम बड़ा फख्र करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, फिर क्यों जूते खाते हो? बोलो, क्यों जूते खाते हो? कहते जी इत्तेहाद नहीं है। क्यों नहीं इत्तेहाद है भाई? सारे शिर्क करने वाले एक प्लेटफॉर्म पे तो जमा हो भाई। हम तो दाल में नमक के बराबर हैं, जिनको आप वहाबी कह करके निकाल देते हो। लंदन में बैठा हुआ एक मुशरिक बिदती मौलवी कहता है कि हमें ज़ईफ हदीस कर करके क्यों हमें इबादतों से रोक रहे हो? हमने तो तुम्हें ज़कात समझ करके अपने माल से निकाल दिया है 2.5%। ताना दे रहा था वो, ज़कात समझ के हमने तुमको बाहर किया हुआ अपने से, हम तुम्हें बाहर किया हुआ। हमने कहा बेटा तू मालिके निसाब कब हुआ? ज़कात तो उन पे फर्ज है जो मालिके निसाब हो जाते हैं। तू मालिके निसाब कब का हुआ? फकीर इब्नुल फकीर, कल्लाज, ईमान से दूर, शिर्क की गलाजतों में सांस लेने वाला। तुझे कभी ईमान नसीब हुआ मरदूद? तो कब मालिके निसाब हुआ कि तू हमें ज़कात का माल समझ करके बाहर 2.5% निकाल दिया है? ये दादागिरी, चोरी और सीना जोरी, ये बदतमीजी। अलगरज क्या बताएं हम, दिल रोता है। रोजा रख लेना कमाल नहीं है, नमाज पढ़ लेना कमाल नहीं है। सबसे बड़ा कमाल यह है कि तकवा। कहीं अल्लाह ताला ने मुसलमान के नाम पर जन्नत नहीं बताया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकाती। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का ही मतलब, बाबा बेटा दे दो, बाबा, हे बाबा, ए
बाबा तेरे दरबार में हम हाजिर हैं, बाबा हमको ये दे दे, बाबा हमारा सलाम कबूल कर, ये फकीर आए हैं, ये मोहताज आए हैं, इनकी मुरादें भरी मुरादें पूरी कर दे बाबा, बाबा ये कर दे, बाबा ये कर दे, बाबा वो कर दे, बाबा ख्वाजा तेरे दरबार में आए। मैंने एक वीडियो देखी, चल रही है आजकल, खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो उनके वसीले से मांगने जाते। किसने कहा उसके वसीले से मांगने भाई? किसने कहा तुमसे? और किसने कहा ये सब वली अल्लाह हैं? किसने कहा? आपके ऊपर वही आई थी कि वली अल्लाह, ये वली अल्लाह, ये वली अल्लाह। सहाबे किराम ने तो नबी साहब की कब्र को पूजा नहीं की। हज़रत अबू बकर की कब्र की पूजा हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तो नहीं की। हज़रत उमर का शहीद हुए, उनकी शहीद हो गए और अभी रुतबा बताया, उनकी कब्र की पूजा तो दीगर सहाबा ने नहीं की है? तुझे किसने कहा कि ये लल्लू पंचू जुम्मन सुबराती जिनके हसब नसब का पता नहीं, चादरें चढ़ा के गुंबद बना के न जाने किन किन लोगों ने, कौन थे, रावजी थे कि शिया थे कि मुस्लिम थे कि गैर मुस्लिम, पता नहीं क्या थे, किसने कहा परस्तिश करने के लिए? इसलिए अल्लाह से तौबा करो, ये इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है। ये मैं खुली बातें इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा फख्र न करो। बहुत सारे लोग कहते हैं नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, भाई इतना काफी है, इतना काफी नहीं है। सबसे बड़ा काफी है, सबसे पहला काफी यह है कि आपका ईमान सही हो, अकीदा सही हो, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। और जिस तरह से सहाबा का अकीदा था, ताबईन का अकीदा था, मुहद्दिसीन का अकीदा था, और जिन इमामों का नाम लेकर के तुम अपनी रोटियां सेंकते हो, जहन्नम की अपने पूछते हो, ये शिकम परवरी, उनका जो ईमान था, उस तरह का ईमान जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हें कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि यही तकवा पैदा हो, यही खौफ हमारे अंदर पैदा हो, यही एहसास और शऊर बेदार हो, लअल्लकुम तत्तकून। इसलिए हम रोजा रखते हैं, इसलिए हम रोजा रखते हैं ताकि हमारे नफ्स को, हमारा नफ्स शिर्क और कुफ्र और मनहियात और मुनकरात और बेहयाइयों और फहाशियों और अल्लाह की नाफरमानियों और रसूल की नाफरमानियों की गलाजतों से हमारा सीना पाक और साफ हो जाए। साल बसाल ये बाकायदे जो रमजान का महीना आता है, ये इन गुनाहों को, इन गंदगियों को साफ करता है। इसलिए हम रमजान का रोजा रखते हैं कि ताकि हमारे नफ्स जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे हो जाएं, और अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों से मना किया है उनसे हम रुक जाएं। हमारे अंदर ये ट्रेनिंग पैदा हो, ये मुसलसल एक महीना जो निगरानी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुराकबा है कि अल्लाह देख रहा है, ये एहसास हमारे सीनों में। चोरी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वहीं रुक जाना चाहिए, क्यों? अल्लाह देख रहा है। किसी की जमीन और जायदाद गजब करने की नीयत है, कोर्ट और कचहरी के नाम पर गलत मुकदमे देकर तुम उसके जमीन और जायदाद को हड़प करते हो, और उसके बाद कहते हो हम हाजी साहब हैं, फलानी साहब हैं, ढकानी साहब हैं, फलाने मौलाना है, ढकाने मौलाना, फलाने सेठ और फलाने चौधरी, फलाने वडी वडेरे, फलाने कलमा पढ़ने वाले, फलाने सदका और खैरात करने वाले हैं। जो इकबाल ने कहा, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ, कभी जो मैं सजदे में गया, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। चोरी भी करता है, घटियाई भी करता है, लोगों के माल भी हड़प कर रहा है, एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला तक। क्या एक एक राई का हिसाब। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक राई के दाने से जर्रे के बराबर भी अगर तुमने बुराई की होगी, क़यामत के दिन सब देखोगे, और अगर नेकी की होगी वो भी तुम देखोगे। तुमने क्या समझा हुआ है? ये दुनिया हमेशा के लिए है। अरे ये जो चिल्ला रहे हैं, ये जो इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने की बात जो कर रहे हैं, ये जो है मस्जिदों को तोड़ने की बात जो कर रहे हैं, ये अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, कुर्बानी के खिलाफ, हलाल के खिलाफ। हमने कल एक वीडियो हमारे पास आई फेसबुक के ऊपर, कोई कह रहा था कि हलाल मीट नहीं खाने देंगे। हमने कहा यार ये तो मुकद्दर की बात है, कह रहे हलाल मीट की, हलाल गोश्त की को एवॉइड करेंगे। हमने कहा जाहिर है जो आदमी मूत पीता हो, जो आदमी मूत पीता हो, और जिस आदमी के मुकद्दर में अल्लाह ने गलाजत खाने को लिखा हो, वो घास थोड़ी बकरी का मुकद्दर है कि वो गू ना खाए, गलाजत ना खाए।
नापाक वो बकरी का है वो घास खाए, लेकिन खंजीर का, सूअर का काम यह है कि वो गलाजत खाए। तो उसे कोई हीरे रख दे, उसे कोई अच्छे हलाल खाने रख दे, उसे कोई उस खंजीर उस सूअर के सामने कोई पाक चीज रख दो, वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत में वो चीज मौजूद है। ये अल्लाह की मार है, धिक्कार है, फिटकार है अल्लाह के दुश्मनों के ऊपर कि वो अल्लाह नहीं चाहता कि ये हराम हलाल खाएं, पाकीज़ा चीजें खाएं। ये तो अल्लाह ने मोमिनों के लिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों पाक पाक चीजें तुम्हारे लिए, नापाक चीजें नापाक लोगों के लिए। अल खबीसून लिल खबीसाति वल खबीसातु लिल खबीसीन, है ना। अच्छी चीजें अच्छे लोगों के लिए, बुरी चीजें बुरे लोगों के लिए। तो कोई अगर हलाल मीट से अवॉइड कर रहा है तो करने दो, हमारे बाप का क्या जाता है। अरे भाई किसी कोई अगर अपने आंगन में कुआं खोदे, हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं खोदो, नुकसान है, आपका घर है, समझा सकते हैं। लेकिन अगर वो तुला हुआ है, अगर वो इतना अंधा भक्त बना हुआ, तो बना रहने तो क्या करना है। आंगन में कुआं खोदे, चाहे अपने घर में खोदे, चाहे बेडरूम में खोदे, हमारे बाप का क्या जाता है। हमारा काम सिर्फ वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम पहुंचाना है। अब वो चिल्ला रहा है बेचारा, कह रहा कि जी हम तो हलाल मीट की, हलाल गोश्त की अवॉइड करेंगे, हलाल गोश्त नहीं करेंगे। न खाओ, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो हलाल और हराम दोनों की अवॉइड किए हुए हैं। वो कौन सा किसका नुकसान हो रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी का कोई फायदा नहीं। खाने पीने की चीजें हैं मोमिनों के लिए पाक, और अल्लाह के ऊपर जो ईमान लाते हैं उनके लिए पाक और हलाल चीजें हैं। जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनके लिए, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं, जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते बल्कि उल्टा गालियां देते हैं, अल्लाह का खाते हैं और अल्लाह ही के खिलाफ गुर्राते हैं, तो ऐसे लोगों का हश्र खंजीरों जैसा हश्र है। उनका वही काम है, तो हो जाए। हमारे बाप का क्या जाता है। हमारा काम सिर्फ यह है, ये इस्लाम है, ये दीन है। अल्लाह ताला ने ये इस्लाम, ये दीन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये कुरान, ये कुरान, ये दीन, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। आप ये समझे कि ये सिर्फ मुसलमानों का है ना, ये सिर्फ मुसलमानों का है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये यहूदियों का भी है, ये नसरानियों का भी है, ये मुसलमानों का भी है, ये गैर मुस्लिमों का भी है, ये बुद्धिस्टों का भी है, ये जैनियों का भी है, ये जरतश्तियों का भी है, ये अमेरिकियों का, जापानियों का, सऊदियों का, हिंदियों का, पाकिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का, श्रीलंकियों का, पूरी दुनिया के लिए, या ये पूरी दुनिया के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक और शुबहा नहीं है। ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक और शुबहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हाँ इसमें कोई शक और शुबहा नहीं। ये अल्लाह ने तुम्हें दिया, तुम्हारे लिए। ऐ लोगों, इस कुरान को जलाते हो, ये कुरान को नहीं जलाते हैं, तुम अपने मुकद्दर को जला रहे हो, तुम अपनी तकदीर के खिलाफ लड़, तुम अपने आकबत को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने रब के खिलाफ, पालनहार के खिलाफ, जो जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुम्हें अदम से वजूद में, जो जमीन का बिछोना बिछाने वाला, जो सूरज की रोशनी देने वाला, जो हवाएं देने वाला, जो आग देने वाला, ये सब अल्लाह के बंदे, ये सब मुसलमान हैं, ये सब फर्माबरदार हैं, जो तुम्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। और तुम्हारी तरह और भी मुसलमान हैं बेचारे, जैसे तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंखें हैं, ऐसे और भी, उनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो। अरे लड़ो तो हवा के खिलाफ लड़ो, बोलो हम सांस नहीं लेंगे। लड़ो तो जमीन के खिलाफ लड़ो, यही तो मुसलमान है। कह दो हम तो जमीन पे नहीं चलेंगे। चलो कहां चलोगे तुम, फजा में चलोगे। ये फजा भी अल्लाह की है, ये आसमान भी, ये चांद भी, ये सितारे भी, ये हवाएं भी, ये नहर भी, ये नदी भी, ये नाले भी, ये जंगल भी, ये पहाड़ भी, ये पत्थर भी। अरे जिन पत्थरों को तराश कर तुम बुत बनाकर उनसे भीख मांगते हो, कायनात के रब की कसम है, वो पत्थर भी अल्लाह ने पैदा किए, वो पत्थर भी अल्लाह को सजदे करते हैं। ये सूरज और चांद अल्लाह को सजदा करते हैं, ये जमीन और आसमान अल्लाह का सजदा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये हैवान, ये चरिंदे परिंदे सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। तुम ही 2 पैर के जानवर हो जो अल्लाह से बगावत करते फिर लो, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया, तुम अफजलुल मखलूकात बनने की कोशिश कर रहे हो। शिर्क बिल्लाह है, क्या बताऊं मैं। तो ये तो मुकद्दर की बात है, मुकद्दर की बात है साहब। एक आदमी था, मुकद्दर की बात पे बात आई हमें। तो साहब ने वो वाक़या बताया था, जब हम जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पढ़ रहे थे, तो लोगों ने लतीफ़े बना लतीफ़े की तरह है ये भी एक तरह से। वो ये है कि साहब एक कोई पैडवान था। पैडवान समझते हो, पैडवान समझते हैं। पैडवान मतलब ये जो ट्रेनें जब चलती हैं तो हरी और पीली झंडियां दिखा के ट्रेनों को आगे पीछे करता है।
मतलब रोकना होता है तो रोकता है, नहीं तो झंडी हरी दिखाता है और वो ट्रेन चलती रहती है। तो कलकत्ता से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, वो भी राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी एक्सप्रेस किसी फ्लाइट से कम नहीं होती। और जनाब अली चलती है तो कंकर पत्थर उड़ते हैं, और उसके खास खास कुछ मखसूस स्टेशन है, वहीं वो रुकती है, बच्चे बीच में कहीं नहीं रुकती, इसलिए उसका किराया भी फ्लाइट से भी कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है। तो एक आदमी था, उसको अपने समझाने गया, वो जहाँ समझाना समझते हैं ना, बेटी या बेटे की ससुराल हो या बेटी का मैं ससुराल हो, बाप जाए, तो अपने समझाने गया मेहमानदारी में। तो वहां पहुंचा जब, तो बातचीत होती रहती बुढ़ों में, बुजुर्गों में। तो उसने पूछा कि आप क्या काम करते हो अपने समधी से। उसने कहा कि मैं अब वो जाहिर है काम तो छोटा मोटा काम तो काम होता है, लेकिन आदमी अपने काम को छोटा समझता है। हालांकि कोई भी काम छोटा नहीं होता, भले जूते टांगने का हो, अपने हाथ की कमाई आदमी खाए ना, ये सबसे बेहतरीन है उस रोजी से जो हाथ फैला के मांगने वाली कमाई है। चाहे वो झाड़ू मार करके हाथ से, चाहे वो हमारी माए बहनें बेटियां जो बर्तन मांज करके घरों में झाड़ू मार कर दूसरे के लोग, वो अपने हाथ की कमाइयां, वो बेहतर है भीख मांगने। लेकिन इंसान है अपने अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। सऊदी अरब में टॉयलेट साफ करते हैं और वहां जाके कहते हैं कि जी हम तो मस्जिद के इमाम हैं। अपने मुल्कों में जाकर के लोग बड़ी 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 हाँकते हैं कि जी हम तो मस्जिद के इमामत कर रहे हैं, पता क्या है, यहाँ सड़कों पे झाड़ू मारते हैं। बहरहाल, तो लोग अपने पेशों को हकीर समझते हैं, हालांकि नहीं समझना चाहिए, काम काम है, भीख तो नहीं मांग रहे। तो ऐसे ही वो उसने छोटा समझा, कहा जी मैं वो काम करता हूँ, मेरी नौकरी वो है कि इस रोड से, इस लाइन से जितनी भी ट्रेनें जाती आती हैं, मैं चाहूं तो उन्हें रोक सकता हूं, और जब मैं चाहूं तो उन्हें जाने की इजाजत दे सकूंगा, मेरा वो काम है। यानी बजाय ये कहने की मैं पैडवान हूं, वो कह रहा है कि मैं बड़ी से बड़ी ट्रेन। तो उस मेहमान ने कहा जो अपने समधी से, कह रहे इस रूट से राजधानी एक्सप्रेस भी जाती है? कह रहे हाँ राजधानी भी जाती है। तो कहा कि आप राजधानी को भी रोक सकते हैं? बोले हाँ उन्हें रोक सकता हूं, उसमें कौन सी बात है, यही तो कमाल है, यही तो नौकरी मेरी है। कहने लगे अच्छा घड़ी देखिए। उसने कहा अच्छा आधे घंटे में राजधानी आने वाली है, चलो रोक के दिखाओ। कहा बिल्कुल चलो। लेके गया भैया समधी जी को, वहां खड़ा किया। राजधानी तो आ रही थी चिंगाड़ मारते हुए और शोर फोर, और अब ये लाल झंडी लेके खड़ा हो गया। लाल झंडी दिखा रहा, ट्रेन अपने रफ्तार से गुजरती रही, लेकिन करीब आते आते ड्राइवर बेचारा वो ब्रेक मारते 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 आगे तक थोड़ा चला गया। आखिरी जो जिसमें गार्ड होता है, गार्ड जिसमें होता है, वो आखिरी डब्बा पेटवान के सामने रुका। मतलब बहुत तेज ब्रेक मार करके रोकी उसने। जब रुका वहां पे और गार्ड उतर के आया इसके पास, हाँ भाई क्या बात है, कुछ परेशानी है, आगे कुछ मुश्किल है, क्यों लाल झंडी तुमने दिखाई, तुमको पता नहीं ये राजधानी है? उसने कहा हमें पता है राजधानी है, और इसलिए दिखाई। कहा तो फिर क्यों तुमने लाल झंडी, कोई मुश्किल है आगे? कहा कोई मुश्किल नहीं। कहा कोई ट्रेन की पटरी उटरी तो नहीं खराब है? कहा नहीं कोई खराब नहीं। कहा फिर तुमने क्यों लाल झंडी दिखाई? कहा बस मेरी मर्जी। बस निकाला जूता उसी समधी के सामने ही मेहमान के 10 जूते मारे उस पैडवान को। कहा खबीस आदमी, अच्छे खासी हमारी ट्रेन जा रही थी, कमीना आधा घंटा हमें लेट कर दिया। बहरहाल, और क्या कहते, कहा दे हरी झंडी दिखा, हरी झंडी दिखवाया, और जा करके गार्ड जो है अपने डब्बे में बैठा और ट्रेन फिर आगे बढ़ी। तो जो मेहमान थे, जो आए थे, मेहमान ने कहा यार ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने आपको 10 जूते मार दिए। तो उसके बावजूद भी ये बंदा क्या कह रहा है मालूम है, जो जूता खाया हुआ था, वो कहता है इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। कहा यार उसने 10 जूते मारे, ये बुरी बात नहीं है। कहा बुरी बात नहीं, पावर की बात है। अरे मेरा पावर था, मैंने ट्रेन रोक दी, उसका पावर था जूता मारने का, उसने जूता मार दिया। तो ये पावर की बात है, इसमें कौन सी बुरी मानने की बात है? तो भैया अगर आपके मुकद्दर में हलाल मीट खाना है, हलाल गोश्त खाना है, और किसी के मुकद्दर में हराम और झटके का खाना है, तो मुकद्दर की बात है ना, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? कोई बात नहीं है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं, हम हिजाब के मसले पे, पर्दे के मसले पे लड़ते हैं, ये करो वो करो।
अरे तुम्हारे घरों के अंदर पर्दा करो, अपने अपने घर से आगाज करो, शुरुआत करो। हमारी औरतें, हमारी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती हैं बाजारों में, क्या गैर नहीं देखता? पूरी दुनिया निगाहों में है सबके। आज दुनिया एक गांव की तरह हो गई है। हम अपने बहन बेटियों को पर्दा नहीं करवाते, हम अपने घर में पर्दा नहीं करवाते। हमारी भाभियों से, हमारे बहनों से, हमारी चचेरी बहनों से, हमारी ममेरी खलेरी बहनों से है कोई पर्दा? हमारे यहां तो पर्दा तुम लड़ते हो कि जी हिजाब। हिजाब क्या होता है? असल निकाब है, पूरे चेहरे का पर्दा। ये क्या साहब, पूरा चेहरा खोल के सिर्फ दुपट्टा लगाने को, ये शरीयत है? ये कौन सी शरीयत? ये भी शरीयत नहीं है। मजाक न बनाओ इस्लाम का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों टोटल मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर न रहो। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया आज एक विलेज की तरह हो गई है। पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या हाल है और कैसे मुसलमान औरतें रहती हैं, फिरती हैं, चलती हैं, सब देख रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर हमारी औरतें, हमारी लड़कियां डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, भंगड़े डाल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे इंडिया हो। क्या नहीं हो रहा है? और उसके ऊपर हम कह रहे हैं साहब ऐसा नहीं वैसा। इसलिए हम खुद सुधरें। पहले हम खुद अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त करें। पहले हम अल्लाह की तौहीद की चादर को न नोचें, ताकि हमारी बहन और बेटियों के आबरू महफूज रहे, हमारी आबरू महफूज रहे, हमारी इज्जत महफूज रहे। हमारी बेटियों के जिस्म से कोई चादर खींचने की हिम्मत न करे, वरना मोहम्मद बिन कासिम, याद है मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह 93 हिजरी के अंदर एक औरत ने, जब इसी राजा दाहिर जैसे खबीस नफ्स आदमी ने, उस खबीस ने जब एक औरत की चादर इज्जत को तार तार करने की कोशिश की थी, और उसने कहा था या वाह मुअतसिमा, है मुसलमानों के अमीर, कहां हो तुम? हमारी इज्जत व आबरू ये दुश्मन इस्लाम खींच रहा है। उस वक्त वो आवाज पहुंची थी और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह 12,000 की फौज लेकर पहुंचकर, जो हुआ तारीख में वो नक्श है। ऐसे जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए ईमान की मजबूती चाहिए, हथियार नहीं। सबसे बड़ा हथियार इंसान का ईमान है, अकीदे तौहीद है। और जब इंसान का अकीदे तौहीद कमजोर होता है तो वो बिल्ली से डरता है, कौवे से डरता है, चूहे से डरता है, काकरोच से डरता है, उससे डरता है, हर चीज से डरता है। हाँ जनाब, हाजी साहब मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं, क्या हुआ? हजन ने पूछा, अरे बेगम वो बिल्ली रास्ता काट गई। फिर वो घरों के ऊपर जूते डालता है, ताबीजें गंडे पहनाता है अपने बच्चों को, डर खौफ, गाड़ियों के ऊपर, टैक्सियों के ऊपर, घरों के ऊपर जूते। बुरी नजर वाले जरा मुंह काला लिख लिख करके, अबे जूते के अंदर इतनी ही शिफा है तो तू भी बड़ा खूबसूरत है, अपने गले के अंदर डाल ले, जूता पहन के घूम, अपनी बहन बेटियों के गले में डाल करके फेंक कर दे। जूते के अंदर अगर इतना ही फायदा है तो अपने गर्दनों में तो जूता पहन के नहीं घूमते। नई नवेली गाड़ी लाई, उसके ऊपर जूता लटका दिया, पीछे लटका दिया, आगे लटका दिया, क्या हिमाकत है। बहर तो जिनके ईमान और अकीदे इतने कमजोर और इतने ज़ईफ हों, वो उनकी कमजोरों की कोई मदद नहीं होती। ईमान कवी करो, मजबूत करो, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा रखो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी होता है। और कुफार तुम्हारे सरों पे हंसते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरों पे कुफार खड़े हुए थे और हजरत अबू बकर ने देखा कि उनके, और नबी करीम उसी गार के अंदर बैठे हुए, यार गार मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के रज़ानुए मुबारक पर सर रख करके आराम कर रहे। हजरत अबू बकर ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कुफार ने अगर अपने पैर देखे तो हमें देख लेंगे, हैं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अपने उस महबूब साथी, प्यारे दोस्त सैयदना उमर सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से क्या कहा कि ला तखफ इन्नल्लाह माअना, न डरो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह जिसका मददगार होता है, पूरी दुनिया मिलके उसका बाल भी कोई बेका कर सकती नहीं कर सकती। और जिसको अल्लाह छोड़ दे, हाय, पूरी दुनिया मिलके सारे मजार, कबर, दरगाह, भूत, जिन, भूत, प्रेत, अंडे, बंडे, झंडे, चबूतरे, चौके, ताजिए, शद्दे, अलम, ईर, फकीर, फलानी, ढकानी, सब मिल जाएं, अगर अल्लाह तुम्हें नफा न पहुंचाना चाहे, ये सारे मिलके तुम्हें नफा पहुंचा सकते ना। अहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह को याद रखो, तुम्हें अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह को भूल गए,
है मुश्किल आई, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर पे आया हूं बन के सवाली, है बस तेरा करम है आका। मुसलमान, मैं दूसरों को क्या कहूं, दूसरों के ऊपर तो आप सब बोलते हो, सब जानते हैं, हमें तो अपनों के अंदर कुफ्र बैठा हुआ है। इसलिए तकवा अख्तियार करो, परहेजगारी अख्तियार करो। रमजान का यही दर्स है, रोजा रखने का यही मकसद है। अगर ये मकसद पूरा नहीं होता तो फिर याद रखो हमारा रोजा बेसूद है, बेकार है, कोई फायदा नहीं रोजा रखने से, बिल्कुल कुत्तों की तरह। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान बुराई करने से न रुके, अपनी जुबान को गंदी से, अपने ईमान और अकीदे को, अपने गंदी चीजों से जो अल्लाह ने मना किया उन चीजों से न रुके, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो कुत्ते की तरह खाना पानी छोड़ दे, भूखा रहे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रोजे से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया पता है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। ठीक है, बहुत सारे नमाजी हैं, शिरक करते हैं, बिदात करते हैं, हराम खाते हैं, हराम करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, बदमाशियां भी करते हैं। कहते क्या हुआ, हम तो नमाज तो पढ़ रहे हैं ना। तो उसको चाहिए कि वो सोच ले कि अगर उसकी नमाज उसे बुराइयों से नहीं रोक रही है, बेहयाइयों से नहीं रोक रही है, फहाशियों से नहीं रोक रही है, बदकारियों से नहीं रोक रही है, तो वो अपने नमाज की खैर बनाए। इसका मतलब यह है कि उसकी नमाज नहीं है, उसकी नमाज से उसको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो रोजा जो है तकवा पैदा करता है। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इखलास अल्लाह के लिए पैदा होता है। ये रोजा जो है तकवा पैदा करता है। और अगर ना पैदा हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं भूखा प्यासा रहे। जो शिरक न छूटे, बिदात न छूटे, मुनकरात न छूटे, तो असल तकवा यह है। और उसके बाद सारे मुनकरात हैं। और ये रोजा जो है दीगर और इबादतों में तो रियाकारी का उनसुर, रियाकारी पाई जा सकती है, रियाकारी, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी और दिखावा नहीं है। मालूम है आपको कैसे? कैसे नमाज पढ़ रहे हो, महल्ले के लोग देख रहे हैं, घर के लोग सब देख रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ भाई फलाना बड़ा नमाजी है। हज करने जा रहे हैं तो आपको पता ही है, लोग ना देखें तो भी लोग दिखाते हैं। हमारे यहाँ जब हज करने जाते हैं तो ट्रेन का डब्बा सजाते हैं, हाजी साहब अभी हाजी साहब नहीं हुए, आए नहीं मक्का मदीना, हाजी साहब पहले से बोले जा रहे हैं। और जनाब अली माले पहनाए जा रहे हैं, क्या क्या पहनाए जा रहे हैं, सब कुछ है। दावतें हो रही हैं पूरे खानदान भर के अंदर, अभी आए नहीं है मक्का मदीना, पता नहीं मर जाएं। तो ये हाल है लोगों का, रियाकारी और दिखावे का। तो बहरहाल दीगर इबादतों में, हज में, ज़कात में, सब में दिखावा होता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखावा नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि मैं बंद कमरे में बैठा हूं, खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, सो रहा हूं, ऐश कर रहा हूं, कौन देख रहा है? मुंह बाहर निकले, मुंह पे टिश्यू मार के, रुमाल, और जनाब वाली बाहर निकल के घूम रहे हैं, क्या है भाई? रोजे से। कौन जानता है? ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि तुम रोजे से हो कि नहीं हो। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान की चीज है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करा मालूम है? कि चूंकि अल्लाह को इत्तला है कि ये रोजे से है कि नहीं है, अल्लाह को उसकी इबादत का पता है, इसलिए अल्लाह ने उस इबादत के अजर को भी अपने लिए खास कर लिया, अपने लिए खास कर लिया, कि ताकि उसके अंदर कोई दूसरा, क्योंकि अल्लाह ही को देना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस के रावी कहते हैं कि कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफुल हसनत अशरतु अमसालिहा इला 700 ज़िआफ। बनी आदम का हर अमल रमजान के महीने में 10 गुने से लेकर के 700 गुना, 10 गुने से लेकर के 700 गुना उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। और हदीस कुदसी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। नमाज का अजर 10 गुने से लेकर 700 गुना, ज़कात का अजर 10 गुने से लेकर 700, तरावी का, हर चीज का, रुकू का, सजदा का, हर चीज का। लेकिन रोजे का अजर, रोजे का सवाब, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह, रोजा सिर्फ मेरे लिए बंदा रखता है और उसका बदला भी मैं ही दूंगा। मतलब मेरे लिए, यानी मुझे पता है वो रोजे से है कि नहीं है। दुनिया वालों को तो क्या पता, मुझे पता है,
کہ پانی وضو بناتے ہوئے کلی کے کیا لیا, کوئی نہیں دیکھا دائیں بائیں, کوئی بھی نہیں, پانی لیا اور ایک گھونٹ مارا, دوسرا لیا, پھر جو اندر گیا اللہ دیکھ رہا ہے, باہر جو نکلا بندے جا رہے ہیں, کس کو معلوم؟ اللہ کو پتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ وَأَنَا, میں اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ يَدَعُ شَهَوَتَهُ وَطَعَامَهُ, اپنی شہوت اور اپنے کھانے پانی کو اس نے چھوڑا ہے بندے نے, من اجلی, میرے لیے, اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا رتبہ ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے, اس اخلاص اور للہیت کو پیدا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. پھر روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ, ایک خوشی تو اس وقت جب افطاری کے اوپر بیٹھا ہوا اذان کے انتظار میں کہ اب اذان ہوگی, اب اذان ہوگی, اب اذان ہوگی, اور پھر وہ خوشی جب روزہ کھولتا ہے چہرہ گلنار ہو جاتا ہے خوشیوں مسرت سے. وہ فرحت عند لقاء ربہ, اور ایک خوشی بندے کو اس وقت ملے گی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. ہائے, اس لیے موت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے, یا موت کے اوپر کبھی غم نہیں کرنا چاہیے, کبھی غم نہیں کرنا چاہیے کہ مر گئے تو یار مر جائیں گے, یہ ہوگا, کچھ نہیں. ارے مر جاؤ گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ کو دیکھو گے. مر گئے تو قبر کے اندر جنت کے باغات کھلیں گے, دنیا کی جہنم سے, دنیا کے قید خانے سے آزادی مل جائے گی. تو ایسا کرو گے. مجرم ڈرتا ہے, جو مجرم ہوتا ہے نا, مجرم گنہگار بدکار جو جرم کا, وہ اس کو بڑا ڈر لگتا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بیوی چھوٹ جائے گی, بیچارے یہ بیوی چھوٹے گی. ہمیں اللہ وہاں نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے گا. یہ میلے کچیلے بسترے چھوٹیں گے, اللہ ہمیں بہترین بسترہ, بہترین یہاں سے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے کہ جن نعمتوں کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے, ان نعمتوں کا جو احساس ہے وہ کسی کے دل کے اوپر بھی اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. تو موت سے نہ ڈرا کرو, موت سے کبھی غم زدہ نہ ہویا کرو, بلکہ اللہ سے ملاقات کی جب یہ خواہش ہوگی, رغبت ہوگی, میں اللہ سے ملوں گا, اس مالک سے ملوں گا جو یہ پوری کائنات کو بنانے والا, ہمیں آنکھیں دینے والا, کان دینے والا, حق, اس کو ہم دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے, بولو آمین. تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, اور روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے نا, جو سہ پہر کو ظہر کے بعد سے لے کر کے پھر مغرب تک بیچارے مسواک تو کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک کری سی بدبو منہ سے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ جو بو ہے, وہ بو مشک و زعفران سے بھی زیادہ, کہیں زیادہ خوشبودار ہے, پسندیدہ ہے. اس لیے پریشان نہ ہویا کرو. اللہ اکبر, یہ ہے روزے کے, یہ ہے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ ہمیں اپنے سے بہت زیادہ قریب کرتا ہے, اور قریب کرنے کا سارے وہ راستے بند کر دیتا ہے جو ہمیں گمراہیت کے راستے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ, رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہاں, اور پھر وہ کھلے رہتے ہیں. جنت کے کتنے دروازے, جنت کے کتنے دروازے پتہ ہے؟ 8 دروازے. کتنے؟ جنت کے 8 دروازے, 5 اور 6 7 8 دروازے. اور اس میں ایک دروازہ باب الریان, وہ دروازہ جس کا نام باب الریان ہے, وہ دروازہ خاص ہے روزے داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس میں صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے. اللہ ہمیں باب الریان میں سے ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے جنت کے اندر. تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب تک کہ رمضان کا مہینہ رہتا ہے. وصفت الشیاطین, مرد, اور ایک حدیث میں مردت الشیاطین, وہ جتنے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں سرکش شیاطین ہیں, وہ سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو موسم ہے عبادتوں کا, بہار ہے, موسم بہار ہے عبادتوں کا, اس لیے سارے رکاوٹیں ختم ہیں. اس لیے کہنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُنَادَ مُنَادٍ, پکارنے والا آسمان سے آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر اور بھلائی کے متلاشی, خیر و بھلائی ڈھونڈنے والے آگے بڑھ, آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, اور اے برائیوں کے ڈھونڈنے والے ٹھہر, رک جا, برائی مت کر. وَلِلَّهِ وَتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ, اور اللہ رب العزت کے پاس جہنم سے آزادی,
آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے، آزاد فرماتا ہے. یہ ترمذی کی روایت اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواہ البخاری و مسلم. کہ ایک نماز سے لے کر پانچوں نمازیں جو ہیں، اور اسی طرح سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے، اسی طرح ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، 5 نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، اور رمضان سے لے کر کے ایک رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، آنے والا رمضان اور 5 وقت کی نمازیں اور یہ جمعہ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. وہ تمام سب چیزیں سوائے اس وقت اذا اجتنب الکبائر، شرط یہ ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. یہ حدیث سے بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. بہرحال عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. سوال و جواب بھی غالباً ہیں، اس لیے اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، وجوہات ہیں. اللہ دعاؤں کا حکم دیتا ہے، دعا کرو. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز سخاوتوں میں ہو جاتے تھے. اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس لیے ہم رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے سورہ مبارک نازل فرمائی اور فرمایا کہ شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. اور یہ بڑی پیاری رات، ایک رات 1000 مہینوں سے، اور 1000 مہینے 13 برس 4 مہینے. کس کی عمر 13 برس ہوتی ہے؟ 13.5 برس ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لوگ تو 60-70 ہی کے بیچ میں ٹپک جاتے ہیں. تو ایک رات اگر مل گئی وہ تاخرات، تو 83 برس، 83 برس 4 مہینے کی عبادت کے برابر وہ ایک رات کی عبادت ہوگی. اللہ یہ اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں، اور یہ آخری آخری جو عشرہ 10 ہے اس کے اندر ہے. اس لیے ان 10 راتوں کو جاگا جائے. تاخراتوں میں تو بعض لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں. 2 قسم کے شارٹ کٹ مارنے والے، ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا حامل کہتے ہیں، وہ شارٹ کٹ مارتے ہیں. کس طرح سے ہیں کہ صاحب وہ ہر تاخرات کو جاگ لیتے ہیں بس، اور بقیہ راتوں میں خراٹے لیتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں. اور ایک اور جماعت ہے مسلمانوں کی جو صرف ایک رات جاگتی ہے، وہی 27ویں رات، بس باقی سب رات خراٹے لیتے ہیں. غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات جاگتے تھے، 10 رات جاگتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے 10 رات جاگنی چاہیے، شارٹ کٹ مت مارو. اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں پیار، محبت، اخلاق اپنے، وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سب کے درمیان بانٹنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھو یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکاں. سب کے ساتھ خیر اور اخلاق اور محبت سے. یہ نہیں کہ روزے سے ہو تو منہ بنا کر کے چلو، کوئی کہے ارے بھائی یہ کام نہیں، یہ جھگڑا، ارے بھائی روزے سے ہیں ہم. ارے بھائی بعض لوگ تو یہ ظاہر کرتے ہیں غصہ دکھا کر کے، پتہ نہیں ہے میں روزے سے ہوں. اعوذ باللہ. ابے تیرے روزے رکھنے سے بہتر ہے تو ایسے ہی بھوکا مر جا. کیا فائدہ ایسے روزے رکھنے سے؟ لوگوں کو دکھا رہا، بتا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے. ارے مسکرا کے رہو، کیوں اسلام کو بدنام کرو، کیوں اسلام کو رسوا کرو؟ اس لیے تمام سب چیزوں سے بات رک جائیں. ایک آخری بات میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں، تراویح کی نماز بھی قیام کریں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا امام پڑھائے اتنا امام کے پیچھے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا. یہ بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یہ 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں کہ 50 پڑھیں. میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان میں جو لوگ قیام کریں اللہ ایمان کی حالت میں، ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید سے، اللہ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ 2 شرطیں ہیں، ایمان ہو، اخلاص ہو، اور احتساب اجر ہو. امید ہو اللہ تعالیٰ سے، یقین ہو کہ ہمیں اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو آپ قیام کریں، پوری رات پڑھیں. کس نے منع کیا کہ سنت 8 رکعت، 13 رکعت یا 12 یا 9 رکعت مال وطر ہے، یا 11 رکعت مال وطر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پہ بحث نہ کرو. یہ خواہ دھما چوکڑی ملے مناتے ہیں ہمارے ہاں. یہ موسم آنے والا ہے، اب جناب علی سوالات ہو رہے ہیں. 20 رکعت تراویح ہے کہ 8 رکعت تراویح. اللہ کے بندے پڑھ تو صحیح، کم از کم سنت جو ہے اتنا ہی پڑھ لے، بس انشاءاللہ کافی ہے. بہت زیادہ دھما چوکڑی مچانے کی ضرورت نہیں.
हाँ, और 20 पे लड़ाई झगड़ा मत करो, 25 पे लड़ाई झगड़ा, 30 पे लड़ाई झगड़ा ना करो, जितना जिसको तौफीक है पढ़ो। झगड़ा रहने को सुन्नत के मुताबिक पढ़ोगे तो फिर वो नमाज कबूल होगी, और सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ोगे, ठकाठक 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 नमाज मारोगे, तुम्हारे मुंह पर एक काली भुजंगी नमाज फेंक दी जाएगी, चाहे 20 पढ़ो चाहे 50 पढ़ो। समझे कि नहीं समझे? सुन्नत के मुताबिक पढ़ो, इत्मीनान के साथ पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस है वो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, यही तहज्जुद है, यही वित्र है, यही सलातुल लैल है, यही क़यामुल लैल है। इतनी महबूब नमाज है कि इसके इतने सारे नाम हदीस में मौजूद है। तरावी का लफ्ज़ हदीस में नहीं है, ये लोगों ने बनाए हैं अपने मतलब तरबिया कह लेते हैं नाम, जैसे श्याम कुरान हदीस में नहीं है, रोज़ा, लेकिन अब तर्जमा कर लिया है रोज़ा, तो रोज़ा तो ऐसे तरावी का नाम दे दिया है, तो तरावी, वरना क़यामुल लैल वही है, श्याम सलातुल लैल वही है, सलात तहज्जुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही है, और वितर भी, वो सब एक ही नाम है, एक ही नमाज है। समझ रहे हैं? तो आप पढ़िए और इत्मीनान के साथ पढ़िए, सुकून के साथ पढ़िए, और अल्लाह से दुआ कीजिए। दुआओं का ये महीना है, सदका खैरात का महीना है, ये तमाम सब चीज़ें, मोहब्बतों का महीना है, सिला रहमी का महीना है। झूठ, दगाबाजी, चोरी चमारी हमेशा हराम है इस महीने में, और भी इससे बचने की कोशिश कीजिए। ये तमाम सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। एक आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं लोग, और मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मुल्कों के अंदर, ख़ास तौर से चाहे जिस मुल्क के अंदर, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं भी पूरे दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ जा रही, अल्लाह के लिए बिदात न करो, अल्लाह के लिए अपने पड़ोसियों को तकलीफ मुक्त पहुँचाओ। अजान के सहरी जगाने के नाम पर लाउड स्पीकर खोल खोल करके 2-2:30 बजे से लेकर के और फजर तक जो चिंगाड़ मचाता है मौलवी, ए मस्जिदों के मुतवल्लियों, ए मस्जिदों के जिम्मेदारों, इस्लाम को रुसवा ना करो। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। कोई मरीज है, कोई इम्तिहान में है, कोई बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट, अजान दे दी 1 मिनट में, 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है, वहीं तक रखो। लेकिन लाउड स्पीकर में कोई गाने गा रहा है, कोई गाने के तरस पर, नाच के नाम पर तूफान बदतमीजी, गांव गांव, नगर नगर, बस्ती बस्ती सब चिल्लाते हैं। अल्लाह के लिए इस्लाम को रुसवा ना करो, अल्लाह के लिए इस्लाम को बदनाम ना करो। ऐ मौलवियों, ऐ तुम जिस भी मजहब से हो, अल्लाह की कसम तुम्हारी बदमाशियों से, तुम्हारी शरारतों से और तुम्हारी इस धमा चौकड़ी बदतमीजियों से इस्लाम बदनाम हो रहा है। वो बेचारे जो मुसलमान नेक और साले हैं, सुलह पसंद हैं, सुलह करते हैं, उनको तकलीफ होती है। तुम सबके लिए मुसीबत बने हो, इसलिए तुम इन हरकतों से बाज रहो। बस अजान की हद तक जहां तक है, बस बाकी तमाम सब चीज़ें अपने अंदर, मस्जिद के अंदर खोल करके वहां नाक का जोश ठंडा कर लो, अपने अपने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके, बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा है तो वहीं करो। ये नहीं कि फजर के बाद भी जनाब अली कव्वालियाँ गा रहे हैं और सलाम के नाम पर आधा आधा घंटे मौलवी गले फाड़ फाड़ के पूरे। अरे तुम अपने मस्जिद के अंदर कर लो, वो मस्जिद के अंदर क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर अंदर का चालू कर लो, मीनारों का बंद कर दो, वरना देख रहे हो तुम्हारी इन बिदात और गलत बातों की पादाश में एक चीज़ ख़त्म हो रही है, जो अजान है, उसके ऊपर भी आवाज़ें उठ रही हैं तुम्हारी हमारी बदमाशियों की वजह से। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि रमज़ान आ रहा है, ये अखलाक का, मुआसात का, गुर्बत, गरीबों को, मिस्कीनों को उनके साथ अच्छा सलूक करने का महीना है। इसलिए लोगों को तकलीफ ना दो, अजियत मत दो। बस ये मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सबके साथ खैर और भलाई करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक की बरकतों, नेमतों और इनकी हमें अल्लाह ताला इनको क्या कहते हैं, इनसे माला माल फरमाए, और तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दौलत अल्लाह अता फरमाए, कुरान की दौलत अता फरमाए, कुरान की इस्लाम की समझ अता फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत तमाम इस्लाम के मुखालिफिन के दिलों में डाल दे, उन्हें हक़ाइक़ को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते बसते हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त व आबरू की ऐसे शर पसंद लोगों से, अनासिर से अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। अल्लाह जो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाए, अल्लाह ताला उन्हें तू हिदायत देने वाला है, हिदायत देनी तो अल्लाह उन्हें हिला को बर्बाद फरमा दे। अल्लाह जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व आदा दीन, आदा का व आदा दीन,
ए अल्लाह शिरक और मुशरिकों को मिटा दे मौला, और अल्लाह जो लोग दुश्मन हैं, तेरे दुश्मन हैं, तेरे इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह उन्हें तू हिला को बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह वज़लज़िल अक़दाम, अल्लाह उनके पैरों के नीचे जलजले पैदा फरमा दे, अल्लाह उन्हें हिला को बर्बाद फरमा दे, नीस्त व नाबूद फरमा दे मौला। अल्लाह तू हम मुसलमानों का हामी और नासिर है। अल्लाह कुरान और सुन्नत को ज़िंदा फरमा, हमें कुरान और हदीस पर अपने नबी की मोहब्बत में ज़िंदा रखो, और नबी की मोहब्बत पर हमें मौत आए। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन नबी और सहाबा का साथी बना, अपने नबी के झंडे के नीचे हमें हम सबको अल्लाह ताला जगह अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे रोज़ों को, हमारे क़याम को, सियाम को अल्लाह हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और उसे क़बूलियत का दर्जा अता फरमा। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा, हमें जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों को पूरा फरमा दे। ख़ज़ाने ग़ैब से अल्लाह हम मिस्कीन हैं, हम गरीब हैं, अल्लाह हमें हमारे हाथों में दौलत दे मालदार, ताकि तेरी राहों में खर्च करें, गरीबों मिस्कीनों पर खर्च करें। ए अल्लाह हम परेशान हाल हैं, हमारी परेशानी को दूर फरमा। बीमार हैं अल्लाह हमें शिफायाबी अता फरमा, जितने भी बीमार हैं सबको शिफायाबी अता फरमा। हमारी बहन बेटियां अल्लाह जिनके हाथ पीले नहीं हुए हैं, अल्लाह उन्हें नेक और सालेह शौहर अता फरमा। अल्लाह उनकी शादियों का इंतज़ाम फरमा दे मौला। जो नौजवान अल्लाह तबारक व तआला जिनकी शादियां नहीं, उन्हें भी नेक और सालेहा औरतें अता फरमा, बीवियां अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपने अपना अपना महबूब बना ले, अपना वली बना ले, अपना दोस्त बना ले, अपने नबी का दोस्त बना दे। अल्लाह हमें अपने नबी के दीन पर, सहाबा के दीन पर अमल करने वाला, चलने वाला बना देना। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई सवाल वगैरह है तो बेशक कुछ टाइम अगर है 10-15 मिनट के लिए तो बेशक पूछ सकते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह शेख, इंशाअल्लाह हम आपकी बताई हुई बातों पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वाकई हिजाब का मसला काबिल मजम्मत अमल वजूद में आया। ये हमारी कोताहियों का ही नतीजा था कि आज हम सर से जरा सा किसी ने नकाब क्या खींच लिया तो हम तड़प उठे और शोर मचाने लगे और अपने हक के नारे बुलंद करने लगे। और मेरे रब की तौहीद की चादर न जाने कब से नोची जा रही है, उसकी रहमत खामोश है। पर जो ये मुसीबत आई है, ने बहुत अच्छे तरीके से ये बातें बताई कि आज ये हम पर जो मुसीबतें आई हैं ये हमारे ही अमल की कोताहियों की वजह से है। तो कौल अल्लामा इकबाल कि मुत्तक़िद हो तो उठो, बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम शेख से यही उम्मीद दरख्वास्त करेंगे कि शेख आप हमारी महफिल में जरूर आया करें। ईमान की ताज़गी के लिए आपका बयान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं आप सबकी अपनी तमाम बहनों और तमाम महफिल की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिस भी बहन का सवाल है या जवाब है वो जल्द से जल्द अपने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करे ताकि शेख को भी थोड़ी राहत नसीब हो। जज़ाकल्लाह। हमारे फेसबुक पे किसी के पास सवाल है तो वो प्लीज सवाल करें या अपना हाथ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ये पूछना चाहते हैं ना, रमजान की मुनासिबत से रमजान में तकरीबन अपने मसाजिद में तरावी के बाद में बयानात रखे जाते हैं, हर दिन दर्स रखा जाता है, ऐसा कुछ भी इसमें एहतमाम किया जाएगा क्या बोल के पूछना चाह रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बेशक रखना चाहिए, बजाय इसके कि लोग जिसको बैठना है वो बैठे, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। अलबत्ता यह है कि माइक्रोफोन वगैरह अंदर का इस्तेमाल कर लें, बाहर का माइक्रोफोन वगैरह न इस्तेमाल करें, बल्कि अंदर का इस्तेमाल करें ताकि किसी को सोना है तो वो सोए, किसी को ड्यूटी करना है, किसी को बीमार है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को हर एक का अलग अलग काम। तो मस्जिद अंदर माइक्रोफोन चालू करके वो दरस कुरान रखें या जो कुरान पढ़ा गया है उस कुरान का खुलासा पेश करें। बिल्कुल जायज़ है, जायज़। अगर जो भी शामिल है हर कोई अगर सपोर्ट करे तो हम ये चाहते हैं कि आपका हर रोज बयान हो रमजान की मुनासिबत से तरावी के बाद इस वजह से। मेरा जी हाँ आप। अल्लाह अकबर। अरे हमारे यहाँ अपने प्रोग्राम हैं, लेकिन जब आपके यहाँ 10 बजेंगे तो यहाँ 7 बजेंगे, यहाँ इफ्तारी फिर तरावी की नमाज होते होते हमारे यहाँ 10 बज जाते हैं। तो 10 साढ़े 10 बजे अगर हम आएंगे तो गोया कि फिर वहाँ तो 1-1:30 बज जाएंगे, फिर सहरी का टाइम आपके लिए हो जाएगा। इसलिए बहुत मुश्किल है ये। रमज़ान में मैं अगर रात को दर्स दूंगा इतने बजे तो बहुत मुश्किल है। अगर आपका वक्त तरावी के बजाय नहीं अभी कभी
वल्लाह इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। क्योंकि वक्त का डिफरेंस है और भाई ये इंडिया के हिसाब से बहुत वक्त हो जाएगा, हाँ क्योंकि अगर ड्यूटी भी रहती है और उसके बाद से फिर शाम में 1 बज जाएगा इंडिया में। और वैसे इंशाल्लाह मैं कभी कभी हफ्ते में प्रोग्राम कराने की कोशिश करूंगा। आप ठीक है, परेशान ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह और हमारी बहन के शौक और दुआ कि आप कुरान को प्रोग्राम कराएंगे। अल्लाह उस शौक और जज्बे को अल्लाह ताला बरकरार रखे। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है शेख, और जिसका भी सवाल है कोशिश करें जल्दी से सवाल करें, क्योंकि इसी आईडी से कोई और प्रोग्राम होना है, तो आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सवाल करें। अच्छा अच्छा ठीक है, सही बात। बहुत कम। तैयार है इसकी नज़म कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेख, मेरा सवाल है ज़कात के ताल्लुक से। जी। जैसे 7 तोला सोना और 7 तोला चांदी हो तो ही ज़कात निकालनी है, या फिर उससे कम हो तो किस बेस पे मतलब ज़कात निकालेंगे? तो 7.5 तोला नहीं, 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना या 7.5 तोला से ज्यादा। अगर 7.5 तोला सोना है तो मार्केट में उसका भाव देखा जाएगा कि अगर वो 100 रुपए का है मिसाल के तौर पर, तो उसमें से 2.5 रुपया जकात निकाल दो, ठीक है। और चांदी 52.5 तोला है, चांदी 52.5 तोला उसका निसाब है, मिकदार है, तो 52.5 तोला या उससे ज्यादा है तो 2.5% उसमें भी जकात है। मसलन अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत 100 रुपए है तो उसमें से 2.5 रुपया जकात निकाल दो, यही है, आसान सा है। अब इसी के ऊपर आप बढ़ा लें सब। अच्छा, इससे कम है किसी के पास तो वो उसके ऊपर जकात नहीं, उसके ऊपर जकात नहीं, उसके ऊपर जकात नहीं। और अगर कोई ऐसे मतलब देना चाहे, अब देना चाहे तो उसकी मर्जी है, पूरा घर लुटा दे, उसमें क्या है। देना चाहे तो उसकी मर्जी है, बेशक। तो वो जो सोने का जो रेट होगा, जिस दिन मतलब निकाले उसी रेट पे ना ये? जी हाँ, उसी। और वो सोने का रेट भी जो कसर में आता है, पुराना सोना, जाहिर है आपके पास जो जेवर है या जो सोना है वो पुराना ही होगा, वो जो नया सोने की मार्केट है वो नहीं, बल्कि जो पुराने सोने की कीमत है वही सी कीमत के अंदर निकाली जाए। मौलाना, और एक सवाल था, अगर किसी के पास तो 7 तोले सोने के बजाय सोना नहीं, उनके पास 2 लाख रुपए रकम ऐसा रखी हुई है, ऐसा लोग जमा करते ना, तो उस पर भी ज़कात दी जाएगी? हाँ, उसके ऊपर भी जकात है, 2.5 लाख। उसके ऊपर भी जकात है 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही। ये तो हम सवाल जी। कब से पूछने वाले थे। अगर किसी के पास सिर्फ 10 तोले सोना है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको भी ज़कात देना होगा? हाँ, किसी इंसान के पास सिर्फ 10 तोले सोना है, चांदी नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी चांदी नहीं है, तो उस पर भी ज़कात देना होगा? हाँ, उसके ऊपर भी जकात देना। कोई जरूरी नहीं है कि चांदी हो जब ही, सोना हो, चांदी हो, जो भी हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक भाई सवाल कर रहे हैं कि सवाल करने का अंदाज देखिए, जैसे कि ये पूरे ठेका लेके बैठे हुए हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। उस्मान शेख कोई हैं, वो कह रहे हैं कि अरे यार कुछ अच्छा ही सुना दिया करो कि सब मुसलमानों को एक होकर रहना चाहिए। ये एक हो तो आप तो हो ना भाई, एक सारे तो हम अच्छा नहीं सुनाते, तो आप अपने मौलवियों से अच्छा सुनते हो, तो आप एक हो तो वही तो मैंने तकरीर में कहा, एक हो तो क्यों नहीं क्या कर लेते हो तुम, करो। हम तो 2.5% ज़कात की तरह हम निकाले हुए लोग हैं, वहाबी हैं हम। ये इतने बदमाश लोग होते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। इत्तेहाद का मतलब समझते हैं सर जोड़ना, सर जोड़ के क्या करोगे, कुछ नहीं फायदा होगा जब तक ईमान दुरुस्त नहीं होगा, इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। जब तौहीद ही नहीं है तो इत्तेहाद कहां से होगा। तो ऐसे अहमक लोग हैं। कुछ अच्छा अभी तक हम बुरा सुना रहे थे, कुरान हदीस की बात थी, तकवे की बात थी, समझाने की बात थी, ऐसे लोगों को बुरा लगता है क्योंकि इनके दिलों में कुफ्र रहता है, शिर्क रहता है, खुराफात रहता है, मुनाफिक रहते हैं ये, तो मुनाफिकों को बात नहीं हजम होती। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए।
जी आमीन। जान लीजिए शेख, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अब हम किससे अपना अपना सर फोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने जिसे हिदायत देना हो वो जरूर हिदायत बाकी रहेगा। बस ये है, कुछ शैतान समझ के हम उसको ले लेके शैतान हमारे पीछे आ रहा है। अल्लाह हिदायत दे। अब मैं के सलमा को दावत देती हूँ कि अगर वो मौजूद है तो अपना माइक ऑन करें और नज़म पेश करें। ठीक है, आप लोग फिर नज़म वगैरह पढ़िए, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यहाँ मगरिब की अजान हो चुकी है। हाँ जी, ठीक है, मैं इजाज़त चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो कुलसुम अप्पा। हाँ के सलमा, सवाल दो हमको इधर का, और कोई सवाल? फूलों को पकने से पहले बेचना मना है, तो हमारे यहाँ आम वगैरह के जो अचार बनते हैं उसका क्या? अब अचार बने चाहे चटनी बने भैया, वो फूलों से पहले वो हराम है, वो हराम है। जो बाग वगैरह फूलों पे पकने आम आने से पहले बेच देते हैं या फलों को बेच देते हैं, वो हराम है, वो जायज़ नहीं है, उसकी कमाई हराम है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और क्या है, कोई सवाल और भी है भाइयों का? कोई सवाल? माशाल्लाह आज तो सवालात बड़े कम हैं, है? कोई सवाल नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं है। चले फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। मेरा प्रोग्राम वैसे यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर ईशा के बाद है। मौका मिला ऑनलाइन करने का तो वहाँ करते हैं, नहीं तो अल्लाह मालिक है, अगर वहाँ नेट वगैरह रहा तो वहाँ भी हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फेसबुक के ज़रिए ऐसे ऑनलाइन तकरीर होगी इंशाल्लाह तो बताएंगे। तो दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वरना फिर जुमे के दिन, जुमे का खुतबा है 12 बजे सऊदी अरब के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और इंडिया पाकिस्तान में 2 घंटा और 2.5 घंटा आप लोग आगे पीछे कर लें, तो इस हिसाब से इंशाल्लाह जुमे का खुतबा भी। और मज़ीद प्रोग्रामों को देखने के लिए आप जो है यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पे सारे मुहादरे, तकरीरें, लेक्चर्स, नई नई वीडियोज़ हमारे और छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं तकरीरों के और दरसों के मौजूद हैं। आप दरख्वास्त है अजीज़म अब्दुल्ला से कि वो एड्रेस डाल दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप उसको, और देखें, और ताकि नई नई लेटेस्ट जो भी तकारीर हैं और दुरूस हैं, सवाल व जवाब हैं, वो आप तक पहुँचे जाएं, और उसे आप 2 लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, नशर करें, उसको फैलाएं, ताकि दीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो, शऊर पैदा हो, समझ पैदा हो, लोग कुरान और सुन्नत से करीब आएँ, शिर्क और कुफ्र से दूर हों, ताकि उन्हें उनके ईमान को सैकल किया जाए, उनके जंग लगे हुए ईमान और अकीदे को ताबनाक बनाया जाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाए। रमज़ान का ये महीना है, अल्लाह ताला हमें इसकी खैर व बरकत अता फरमाए। तो ये एड्रेस मौजूद है, आप इस एड्रेस पे जाएं यूट्यूब पर, और वहाँ पे क्या कहते हैं, नई वीडियोज़ जो भी हैं सवाल व जवाब के, छोटी छोटी क्लिपें हैं, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, और भी खुतबे जुमा हैं और दुरूस हैं, और भी दीगर चीज़ें, कुरान के तर्जमे मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ ने किए हैं, और वो कुरान के तर्जमे भी आपको यूट्यूब पे लेंगे। आप वहाँ जाएं, 1 पारा 2 पारा, रमज़ान का मौका है, तर्जमे के साथ आप अपनी गाड़ियों में, आप अपने घर में उसको लगा करके मोबाइल में आप पूरा तर्जमा पढ़ें, सुन भी लें, और वो तिलावत भी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ये पता, उसका भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, सब्सक्राइब करें और सुने इंशाल्लाह। कुरान को फैलाएं, कुरान को जो मेरी आवाज़ में है, तर्जमा है, मुख्तलिफ मशाइख के कुरान के तर्जमे का लेकर के मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज़ में, और जो तिलावत है वो कारी सिद्दीक मिंशावी रहमहुल्लाह की है, और उसके अंदर हर सूरे के फ़वाइद और खुसूसियात और शान नुज़ूल और वो तमाम सब चीज़ें मैंने हर सूरे के शुरू में बतलाई हैं, और उसके फ़ायदे भी बताए हैं, खुलासा भी बताया है। तो आप हजरात रमज़ान में उसे आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं,
اور اسے لوگوں کا لنک دے دیں کہ یہ قرآن ہے سلفی ترجمہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق، جس کے اندر 80% تقریباً 40% کے قریب الفاظ جو ہیں جو ہماری زبان میں عربی میں بولے جاتے ہیں اردو میں مستعمل ہیں، ہم نے کوشش یہ کی ہے اس کے اندر کہ جو بھی فارسی ہو یا اور دوسری زبانوں کے بجائے ہم نے اس کے اندر کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے لوگ جو زبان سمجھتے ہیں عربی کے وہ زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، تو اس قرآن کے اندر 40% گویا آپ عربی بولنے والے بن جائیں گے۔ ہم نے مطلب کہیں بہشت کا ترجمہ آیا ہے بہشت، تو ہم نے بہشت کے بجائے اس کو جنت کیا ہے۔ لوگوں نے ترجمہ دوزخ کیا ہوا تو دوزخ کے بجائے ہم نے وہاں جہنم، جو کہ سب جانتے ہیں جہنم کا استعمال کیا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں روزی دینے والا، تو روزی کے بجائے ہم نے رزق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں خدا خدا کہا ہے، خدا کے بجائے ہم نے اللہ کا استعمال کیا ہے۔ لوگوں نے ترجمے میں پالن ہار، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالن ہار ہے۔ پالن ہار یہ فارسی کے لفظ، اس کے وجہ ہم نے رب کہا، رب ربا یہ سب جانتے ہیں، عام طور پر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ، یہ خصوصیت ہے اس ترجمہ قرآن کی جو ہم نے اس کو لی ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کے ترجمے تیسیر القرآن سے الحمدللہ ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، اور دیگر مولانا ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کا ترجمہ، اسی طرح سے مولانا وحید الزما صاحب کا ترجمہ رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح سے مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، مجمع ملک فیض سے جو تفسیر چھپی ہے وہ، اور بہت سارے ترجموں کو جمع کر کے ہم نے ایک ترجمہ رکھا ہے۔ تو آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ زبردست یہ پہلا سلفی ترجمہ ہے۔ وہ سمجھیے کہ سلفی ترجمہ آواز میں ریکارڈ میں آج تک کسی کا نہیں ہے۔ یہ اس بندے ناچیز کو یہ شرف اور یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، اور آج بہت سال پہلے 2003 میں نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی، جو البم کی شکل میں بھی لوگوں تک آڈیو کی شکل میں پہنچی، اور پھر الحمدللہ سیڈیوں کی شکل میں پہنچی، اب الحمدللہ نیٹ کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ تو آپ حضرات اس قرآن کو اپنے بھائیوں تک، زیادہ سے زیادہ بہنوں تک پہنچائیں۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو لوگوں تک، یہ فری ہے، اس پہ کوئی کاسٹ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، یہ للہ فی اللہ وقف ہے اللہ کے لیے۔ تو آپ اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور قرآن ہے، اس قرآن کی تعلیم کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھلائے۔ تو اس طرح سے اس اجر میں آپ بھی شریک ہوں اور اس ترجمے کو لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسی یوٹیوب ایڈریس کے اوپر یہ ترجمہ ملے گا جو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہو، کیا کہتے ہیں، فیس بک کے اوپر جو ایڈریس دیا گیا ہے، آپ اسی لنک کے اوپر جائیں تو ترجمہ قرآن آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی خطا، کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بندے ناچیز کو اطلاع کریں، اگر آپ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سوال کریں، پوچھیں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی طرف رہنمائی کریں۔ غلطی ہوگی تو ہم اسے صحیح کریں گے اور اللہ سے توبہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں سے توبہ کرے۔ اللہ ہم سب غلطیوں سے ہم توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔